ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਣਕਿਆ ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਐਥਿਕਸ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਥਿਕਸ ਤੇ, which is free of cost and which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS mains, which is going to be held on 1st of April as per the official notification of PPSC, right? And I hope you are preparing very well for that exam. ਤੇ ਉਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਆਫਟਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਗੋ ਵਾਚ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ come on to this next lecture, right? So with all this information, let's start our today's lecture, which is very much important, right? This topic, role of family, society and education institutions in inculcating values. There have been various questions directly straight away asked from this topic, right? So let's start our lecture. Okay, just lecture start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ information rather but very important, very it can be very useful to you if you haven't joined any mains test series yet, right, and looking for one, and then Chanakya IAS Academy have bring up with a very wonderful option for you, which is mains brain box, right? ਆਪਾਂ mains brain box ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ mains ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁਕਲੇਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, right? And the price for that will be just rupees 8,000, and if you want only the test series, just rupees 5,000. 5,000 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਲੇਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, which is very thorough, I can guarantee you that it has been prepared with very thorough under the thoroughly prepare ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, right? I have already told you, right? Previous lectures में बहुत बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ आपको, so you can go that, you can definitely go for this one, right? So yes, now as we have covered this, right, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ। ਚਲੋ, ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਲੈਕਚਰ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ हैं अपना ਲੈਕਚਰ। ਵੀ ਵਰ ਔਨ ਰੋਲ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ, right? But stick with the exam only. Doubt should be relevant, not absurd. ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀਗੇ ਰੋਲ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ। We have already covered this one कि how family impart values, child rearing practices, observation learning. Yes or no? Last lecture में cover किया हमने ये, ठीक है। Then role models, teachings, joint family, social influence, reward and punishment, right? We have covered this. Authority, traditions and customs. This have been covered. Now next, what are the strengths of family for value inculcation? See, आपसे एग्जाम में स्ट्रेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली फॉर वैल्यू इनकलकेशन, राइट? तो आपके लिए सारे इसलिए मैंने पॉइंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, फीडर पॉइंट्स हैं, ठीक है। लाइक व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स? सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है? दैट फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ सोशलाइजेशन, यस और नो? ठीक है, मैंने कल भी बताया था, इट इज द प्राइमरी मोरल इंस्टीट्यूशन। सबसे ज्यादा पहले आपको फैमिली ही आपसे इंटरेक्ट करेगी, राइट? यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द फैमिली ओनली। वहीं पे आपके मॉरल स्टैंडर्ड सेट होते हैं, मोर और लेस आपके फैमिली के जो एथिकल वैल्यूज है वो डेफिनेटली आपके अंदर हमेशा लाइफ लॉन्ग झलकते हैं, ठीक है। देन इज फैमिली इज फॉर एवर एंड कंटिन्यू टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। फैमिली इज फॉर एवर, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, कहीं नहीं जा रही। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है। आप उसके अंदर भी इनफैक्ट स्कूल वेरी करते रहते हैं, कई बच्चों के स्कूल बहुत चेंज होते हैं, कोई एक इंस्टीट्यूट तो है नहीं, आप चेंज भी करते रहते हैं, कईयों की रिक्वायरमेंट इस हिसाब से होती है। बट फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी, फैमिली कभी आप चेंज नहीं कर सकते, यस और नो? सो फैमिली इज फॉर एवर एंड कंटिन्यूज टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज। आपको लाइफ लॉन्ग ज्ञान मिलता रहता है फैमिली से,
ठीक है, आप कितने ही बड़े हो जाओ, आपकी फैमिली से आपको ज्ञान मिलता रहेगा। आप बड़े हो जाओ कि आपके बच्चे भी आपको ज्ञान देने शुरू कर देते हैं, राइट। तो फैमिली हमेशा इज ऑलवेज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज। क्लियर। देन चिल्ड्रन स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद देयर families. Children spend maximum time with their families. Again, yes, आप अपनी लाइफ जर्नी का सबसे मैक्सिमम टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं। यस और नो। तो जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहीं से आपकी मॉरल वैल्यूज डेवलप होंगी, वहीं आपके प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे। यस, बाकी और इंस्टीट्यूशंस आपकी चेंज होती रहती हैं, फैमिली वही है, सबसे ज्यादा टाइम भी आप वहीं पे स्पेंड कर रहे हैं। एक्सेप्ट जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ थिंग्स अ बिट change there, right? But still your family will be there at that point also. Family consists of diverse kinds of people. ठीक है, फैमिली के अंदर बहुत विचित्र विचित्र तरीके के प्राणी मिलते हैं आपको। लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स, देन योर ओन पेरेंट्स। पेरेंट्स के अंदर भी फादर की अदर वैल्यूज, मदर अलग अलग वैल्यूज लेके बैठी हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ग्रैंड फादर अलग, ग्रैंड मदर अलग, ठीक है। देन योर सिबलिंग्स, देन योर स्पाउस, देन आपके चिल्ड्रन भी आएंगे आगे, बट वो एक अलग कहानी है, ठीक है। बट यहां तक आप देख रहे हो। इसके अलावा आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, यस और नो, वो भी शेप करेंगे आपकी वैल्यूज। डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स बनते हैं आपकी आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी में, बहुत वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो। तो एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज, राइट। तो जिसका इम्पैक्ट आप पे डेफिनेटली पड़ता है, वो आपकी मॉरल वैल्यूज को, आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स को डेफिनेटली सेट करते हैं, शेप करते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं, डिस्टिंक्शन लेके आते हैं, राइट। देन पीपल ट्रस्ट देयर फैमिलीज। आपको अपनी फैमिली पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, क्योंकि होना भी चाहिए, वहीं एक आपके साथ खड़े रहते हैं, तो उनकी जो बताई हुई चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। यस, क्योंकि फैमिली धोखा नहीं देती एज सच, राइट। तो पीपल ट्रस्ट देयर फैमिलीज, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। वेयर जब आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, तो क्या आप वहां ट्रस्ट कर पा रहे होते हो? नहीं कर पा रहे हो। तो अपनी फैमिली के ऊपर डेफिनेटली आपका एक ट्रस्ट रहता है। यस, सो अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट एट एन अर्ली एज। जैसे मर्जी मोल्ड कर लिया जाए, बच्चे को जो सिखाया जाता है वो उसको अपना लेता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बताया था इस टॉपिक के कि अ चाइल्ड इज नॉट बॉर्न, अ पर्सन इज नॉट बॉर्न विद एनी वैल्यू सिस्टम। उसके अंदर वो डेवलप की जाती है, इनेट जो होती है, उसकी जो सेल्फ कॉन्शियस भी होती है, वो बहुत बाद में जाके उसके अंदर आती है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। यू आर नॉट बॉर्न विद एनी वैल्यू। Values are definitely innate, but after a certain point of time, when you develop your inner voice, आपकी कॉन्शियस जो होती है, सेल्फ वॉइस जो होती है, बट मोर और लेस वो भी आपके काफी सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, उसी वजह से आपके अंदर डेवलप होती है वो। एंड अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट। जो सिखाओगे, जैसे सिखाओगे वैसे सीख जाएंगे वो। उन्हें कहोगे चम्मच सीधा पकड़ना था, उनके लिए वो सीधा है, उल्टा पकड़ने के लिए उनके लिए वही उल्टा है, वही ठीक है उनके लिए। अगर घर के अंदर जिस हिसाब का माहौल होता है, जैसा होता है, उनको वही अडॉप्ट कर लेते हैं वो। यस सर नो। लाइक कई जगह पे जंक फूड ज्यादा खा रहे होते हैं तो उनके लिए वही सही है। किसी फैमिली के अंदर हेल्दी फूड चलते हैं, हेल्दी डाइट चलती है, तो उनके लिए वही सही है, अकॉर्डिंगली। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी होगी ये चीज। सो दिस इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। आप ये सारे पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हैं, ठीक। देन 7th पॉइंट, फैमिली हैज द राइट टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स, both hard and soft, to inculcate values, and thus has greater means at its disposal. In Indian society, a family is given lot of rights over its members. A family can use directions, incentive, punishments and so on. क्या ये बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ भी है? वो बहुत सारे तरीकों से कर सकती है ऐसा वैल्यू इनकलकेशन, नो। बट फैमिली कर सकती है, फैमिली को अलाउड होता है, ठीक है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट जैसे मर्जी, चाहे डांट के, प्यार से, जैसे मर्जी है, उनके सारे मीन्स है, ठीक है। कि लाइक शादी करवाने के लिए बहुत सारे तरीके का रह जाते हैं कि बेटा ऐसे कर तभी शादी कराएंगे, या वॉट एवर यू कैन से, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि फैमिली के पास बहुत नुस्खे होते हैं, बट बाकी इंस्टीट्यूशन के पास ऐसा नहीं होता, राइट। उनके पास बहुत सारा स्कोप होता है। ओके, देन फैमिली हैज द राइट टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स। ओके, इट इज द सेम थिंग,
रिपीट कर दी गई है यहाँ पर, यू कैन इग्नोर दिस। ठीक है, ओके, सो दिस वाज इनफ, यस और नो। लाइक मींस की यहाँ पर बात करें फैमिली का इन यूज, डायरेक्शंस, आपको कमांड दिए जा सकते हैं, ऑर्डर दिए जा सकते हैं, इंसेंटिव्स, ठीक है, कि आप ये काम करें। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में देखा था ना हमने कि काम सही करो तो रिवॉर्ड मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। पनिशमेंट्स, किसी भी तरीके से आपसे आपके अंदर वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट कराने के तरीके हैं फैमिली के पास, यस और नो, राइट, ओके। अब आते हैं, हमने स्ट्रेंथ्स देख ली, अब प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि भैया फैमिली के थ्रू इनकल वैल्यूज इनकलकेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी तो होंगी, सारा कुछ अच्छा भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट, family values might often be regressive and unjust. For instance, some patriarchal families may teach gender inequality to children and paint an unfair picture of women. Yes or no? यही एग्जांपल मैं बार बार दे जा रहा हूँ, आपको काफी बार दे चुके हैं कि यार नेगेटिव इंपैक्ट भी तो पड़ सकता है। मान लो फैमिली के अंदर जो वैल्यूज है वो ही अपने आप में नेगेटिव है, तो वो पास ऑन होती जाएंगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लाइक वहां पर विमेन की कंडीशन को ज्यादा अच्छी नहीं मानी, विमेन जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है उस फैमिली के अंदर, ठीक है। पेट्रियार्कल सेटअप है, एक हार्डकोर पेट्रियार्कल सेटअप है, तो वही वैल्यू सिस्टम बच्चे के अंदर जाएंगी और आगे फर्दर उनकी जनरेशन में पास ऑन होती चली जाएगी, राइट। तो ये एक डेफिनेट एक चीज है कि लाइक फैमिली वैल्यूज इफ दे आर रिग्रेसिव एंड अनजस्ट, डिफरेंट मेंबर्स इन अ फैमिली में इम्पार्ट कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज। कई बार आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, मैंने बताया ना वेरियस काफी सारे बंदे हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसमें, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, सबकी अलग अलग वैल्यू सिस्टम हो, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो बहुत बार, राइट। फॉर इंस्टेंस, ग्रैंड पेरेंट्स often ask children to come back home before it get dark, while parents may be too ready to give greater liberty. सिचुएशंस आती है कि नहीं आती, मान लो आपकी लेट्स से फादर मदर ही है, आपके फादर थोड़े लिबरल है, मदर थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो वहां पर इशू क्रिएट होगा। आपके फादर कह रहे हैं कि यस इफ यू वांट टू गो, आप जॉब के लिए, आप काम के लिए कितनी बाहर आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो, लेकिन आपकी मदर अलाउ नहीं कर रही है आपको, यस, तो वहां पर चीजें आ जाती हैं। लाइक स्पेशली गर्ल्स के लिए, लाइक गर्ल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार ये चीज, राइट। families often fail to practice what they preach, and children might observe the hypocrisy and thus lose faith in the process. For example, some parents might teach integrity and honesty to children but might take bribes themselves for a luxurious life. ये तो बहुत कॉमन है, सिखाया तो जा रहा होता है ऑनेस्ट रहना है, सुबह मतलब फैमिली के अंदर बोल रहे हैं, स्कूल के अंदर सिखाया जाता है ना कि फैमिली भी बोलते भी हैं कि बेटा जल्दी उठना है, सुबह सुबह टाइम से उठो, टाइम से सो, बट आप देखते हैं आपके पेरेंट्स खुद ही लेट आ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है हेल्दी खाना, लेकिन आप देखते हो कि बाहर जंक फूड भी खाया जा रहा है, यस। तो इस तरह से आपके क्या है कि कंफ्लिक्ट आएगा आपके लिए कि भैया आपके लिए होगा कि यार ये तो हिपोक्रेसी है कि आप बोल रहे हो लेकिन आप कर नहीं रहे। आप खुद कह रहे हो बच्चों ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप देख रहे हो कि फैमिली पेरेंट्स जो है वो खुद, या फिर आपके फादर है लेट्स से कि ब्राइब्स ले रहे हैं, पुलिस जॉब में है, और आप देख रहे हो कि वहां पे ब्राइब्स चल रही हैं, करप्शन का प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो एक नेगेटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। यू विल क्रिएट थिंक लाइक एन, लाइक देयर पेरेंट्स आर एन हिपोक्राइट। आई होप यू नो व्हाट डज हिपोक्राइट मीन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है, फैमिली स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, न्यूक्लियर फैमिलीज आर इंक्रीजिंग इन सोसाइटी, ठीक है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्म होना। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इज वेरी फेवरेबल फॉर इन कंट्री लाइक इंडिया, whereas we are going towards nuclear families. This is happening because of westernization of our Indian democracy, right? जॉइंट डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज होती हैं हमेशा वेरी, दे आर वेरी गुड, ठीक है, मोर वैल्यूएबल देन द न्यूक्लियर फैमिली वैल्यूज, बिकॉज जॉइंट फैमिलीज वाले एक तो इंटरपर्सनल फैक्टर्स उनके बेटर होंगे हमेशा, उनके अंदर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन वाले जो फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, कंपैशनेट ज्यादा होते हैं, लव केयर इस टाइप के फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, एंड दीज फैक्टर्स, दीज वैल्यू सिस्टम इज वेरी मच रिक्वायर्ड आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, यस और नो। सिर्फ रूल बेस्ड रहना, ठीक है, वो चीज सही नहीं है, यू नीड दीज फैक्टर्स, ठीक है। दीज वैल्यू सिस्टम शुड बी देयर, दीज शुड बी अ प्रिंसिपल इन योर लाइफ, बट व्हाट ऑफन मोर ऑफन देन नॉट होता क्या है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में यू कीप सेग्रीगेटेड योरसेल्फ, आप एक छोटी सी फैमिली के अंदर रह रहे हो, ज्यादा आपका
किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। न्यूक्लियर फैमिलीज हम देखते हैं लाइक सोसाइटीज में भी जो रह रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं जानता, साइड वाले को नहीं जानते, तो आप अपने अपने में रहते हैं, सेग्रीगेटेड से रहते हैं, तो वहीं आपका वैल्यू सिस्टम बन जाता है, राइट। आइसोलेशन इज नाउ योर वैल्यू सिस्टम। इसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स भी देख रहे हो आप इसके। आज की डेट में स्ट्रेस ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज इज ऑल्सो रीजन फॉर दैट। So let's see. Family structure is changing. Nuclear families are increasing in society. In such families, especially in urban areas, there are lesser number of members who spend time with each other and hence value inculcation weakens. बंदे कम है, टाइम ही नहीं मिलता आपको ज्यादा इंटरेक्ट करने का। लाइक न्यूक्लियर फैमिली में एक फादर है, एक मदर है, और लेट्स से दे हैव अ चाइल्ड। फादर भी जॉब पे है, मदर भी वर्किंग है, तो बच्चे को टाइम ही कब देंगे? घर आके मिलते हैं, कितना ही टाइम मिलता है उसमें, बहुत कम टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे होते हैं। लेकिन ये ज्वाइंट फैमिलीज हो, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, तो कोई ना कोई हमेशा आपके अराउंड रहता है, राइट। आपको टाइम ज्यादा दे पा रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो अगेन, ठीक है। तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली या न्यूक्लियर फैमिलीज कैन बी गिवन अ अदर वीकनेस या अदर प्रॉब्लम in the role of family. Then, in modern society, children are losing touch with their families. Boarding schools, tuitions, etc. leave less time for contact between children and families. Besides, use of technology such as mobile and social media also add to the disconnect. See, आज की डेट में जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ये किसी इविल से कम नहीं है आज की डेट में। इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, डेफिनेटली इसकी जो इंटेंशन थी वो पॉजिटिव ही थी इसको लेके आने की, बट इसकी नेगेटिव साइड्स भी बहुत ज्यादा है। वो कह रहा है अब वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर लोगों का प्रेजेंस ही कम हो चुका है, दूसरों के लिए टाइम ही नहीं है, आप इंटरेक्ट ही नहीं करते किसी से, हमेशा वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर घुसे रहते हैं। तो जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं देंगे, तो वैल्यू सिस्टम कैसे इम्बाइब करेंगे? यस और नो? ठीक है। तो एक ये चीज, ठीक। और दूसरा ये कि आज की डेट में जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर टाइम ही नहीं मिल रहा। लाइक आप ट्यूशंस पे जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनके, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग आउटसाइड देयर होम। जब घर से ही बाहर है तो वैल्यू इनकलकेशन ही कैसे होगी? इट इज हैपनिंग, राइट। मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा ज्यादा चीजें ये हो रही है। जोन जोन से फैक्टर्स आपको अपनी फैमिली से दूर कर रहे हैं, वहां वो वाले आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि लाइक टाइम ही नहीं दे पा रहे, या जब अब जब इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो वैल्यू इनकलकेशन कहाँ से हो जाएगी? यस, सोशल मीडिया आपको इन चीजों से दूर कर रहा है आपकी फैमिली से, दे आर रिपिंग यू अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली। दिस इज वन ऑफ द मेजर नेगेटिव डाउन साइड ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया पे जब भी कोई ऐसे है कुछ आए, तो आपको वो चीज लिखनी भी है, रादर आपको इस चीज का अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं कहूंगा ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया का यूज एक लिमिटेड टाइम तक ही होना चाहिए, डोंट गो बियॉन्ड दैट। ठीक है, स्पेशली जो रील्स जो आप सर्व करते रहते हो, ठीक है, ये तो पता भी नहीं चलता कितना टाइम खा जाएगी आपकी। स्पेशली ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्पेशली जब आप पंजाब पीसीएस मेंस जैसे एग्जाम लिख रहे हैं, तब तो आपको देखना भी नहीं चाहिए। और अगर आप दूसरे भी एग्जाम दे रहे हैं रादर, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको एग्जाम दे, इन चीजों से दूर रहे, टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला इससे। तो बट स्टिल लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक ओनली। ओके देन, in modern materialistic society, children are imparted values of competition, success, etc., but not the values of love, honesty, compassion, etc. ठीक है, आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, लोगों को बस उसी की पड़ी है, ठीक है, कि कैसे जीतना है, रेस में कैसे आगे आना है। बट ये जो इंटरपर्सनल फैक्टर्स थे, ये जो वैल्यूज थी आपकी, ऑनेस्टी, कंपैशन एटसेट्रा, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डाउन साइड ऑफ द जो एक वीकनेस है आज की डेट में फैमिली सिस्टम के अंदर। ड्यू टू द इंक्रीजिंग रैट रेस एंड मेटीरियलिज्म, फैमिलीज आर इम्पार्टिंग ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये सब हो क्यों रहा है बाय द वे? क्या ये पहले था? तो आंसर है नो। ये बेसिकली आपका मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उसके इफेक्ट्स है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, देवर नॉट, जो आपकी जो आज की डेट में आप देख रहे हो ना, इतना कंपटीशन या मेटेरियलिज्म की तरफ इतना जाना, ये हो क्यों रहा है? ठीक है, सबको चाहिए बड़ी गाड़ी, सबको चाहिए बड़ा घर, सब कुछ चाहिए, उसके लिए उनको चाहिए बस पैसा कमाना है, दैट्स इट, दैट इज देयर होल मोटो, कि बस लोगों से आगे रहना, ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा चीजें इकट्ठी करनी है।
तो वो एक रैट रेस शुरू हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो ये आपकी एक्चुअल जो वैल्यूज है, लाइक लव, कंपैशन, ठीक है, एम्पैथी, ठीक है, ओपननेस, दीज काइंड ऑफ वैल्यूज हैव टेकन अ बैक सीट, राइट? ठीक है। फॉर इंस्टेंस, ब्राइट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन आईआईटीज आर कमिटिंग सुसाइड्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोशल वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। तभी ये होता है, इतने मतलब लाइक सुनते हो आप केसेस, पब्लिक सर्वेंट सब सुसाइड कर रहे हैं, राइट? बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर तक के ऐसे केस सुनने में आए हैं, आईआईटीज के अंदर आप देखने सुनने को मिलते हैं। क्यों मिल रहा है वहां पर? वो जो ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, ठीक है, मेटीरियलिज्म की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, सिर्फ सक्सेस चाहिए, पॉजिटिव, सिर्फ रिजल्ट चाहिए सबको, यस और नो, ठीक है। तो इस चीजों को काइंडली ध्यान रखना है, ये वाली वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये बैक सीट पे आ गई हैं, ठीक। देन inadequate autonomy is granted to children by the families to reflect upon their lives and value system. Due to this, values are only externally accepted but not internalized, and thus adherence is weak. Okay, so यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को एक प्रॉपर अमाउंट में उनको खुला छोड़ना चाहिए। ऑटोनॉमी की बात हो रही है कि दे शुड हैव द पावर ऑन देयर ओन, ठीक है, अपने आप चीजें सीखने के लिए भी। उसके लिए क्या है कि बच्चों को ज्यादा बाहर नहीं निकले दिया जा रहा, ठीक है, रोक के रखा जा रहा है आज की डेट में, अपने पास ही रखते हैं डर के मारे, ठीक है। बाहर ज्यादा खुल, पहले क्या होता था कि बाहर आप खेलते थे, जितना मर्जी टाइम खेल सको, आज की डेट में ऐसा नहीं है, घर पे ज्यादा रखते हैं, फोन के अंदर ज्यादा घुसे हुए हैं, यस। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ज्यादा चीजें इम्बाइब नहीं कर पाएंगे। घर के अंदर रह के ज्यादा चीजें नहीं सीखी जाती, थोड़ा बाहर भी निकलना जरूरी होता है। तो ये भी एक नेगेटिव साइड है आज की डेट में। ये सारे जो आप नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो ना, ये करंट सिनारियो के हिसाब से हैं। लाइक यू कैन से पॉइंट डाउन करना हो आपको, इन एडुकेट ऑटोनॉमी, यस। यहाँ पर आप आओगे तो रैट रेस आप हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर लूजिंग टच विद देयर फैमिलीज, लेस टाइम, ठीक है, इस टाइप से। ओके, देन नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is first, before educational institute, we will go over society, ठीक है। चलो सोसाइटी वाले रोल पे आते हैं, द रोल ऑफ सोसाइटी, ठीक। ठीक है, तो सोसाइटी का क्या है कि जो भी आपने, ठीक है, जो भी आपकी फैमिली आपको वैल्यू सिस्टम, राइट, जो भी सोसाइटी आपकी फैमिली आपको वैल्यू सिस्टम सिखाती है, ठीक है, सोसाइटी वहीं पास करती है, राइट? सी पास द वैल्यू सिस्टम, मतलब सी आपकी हमारी जो फैमिली हमें जो वैल्यूज इनकलकेट कर रही हैं, वैल्यूज इनकलकेटेड बाय आवर फैमिली, वो वाली वैल्यूज भी जो है एक सोसाइटी में रह के ही होती है। मतलब सोसाइटल अप्रूवल मिलता है तभी फैमिली वो वाली वैल्यूज भी अपने अंदर इनकलकेट कर रही होती है, राइट? फैमिली और सोसाइटी का बहुत बड़ा लिंकेज है, आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। फैमिली और सोसाइटी की जो वैल्यूज है इनका आपस में कनेक्शन रहता है, राइट? हमारी फैमिली के अंदर भी जो वैल्यूज है, सोसाइटी बहुत मैटर करती है उनके लिए कि सोसाइटी में किस चीज का अप्रूवल है, किस चीज को का नहीं है, उसके बेसिस पे फैमिली की वैल्यू सिस्टम भी कहीं ना कहीं हो रही होती है, वहीं अंदर आपके अंदर इम्पार्ट करी जा रही होती है, यस। और जब आप फैमिली से सोसाइटी में आते हैं, राइट, सोसाइटी क्या कर रही होती है, सोसाइटी उन्हीं वैल्यूज को जो आपने फैमिली से आपने अंदर आई है, इम्बाइब करी है, इनकलकेट करी है, उसी को आपके अंदर पास कर रही होती है, री कर रही होती है कहीं ना कहीं, थ्रू वेरियस मीन्स। हाउ? थ्रू वेरियस मीन्स, मतलब पास कर रही होती हैं या फिर री कर रही होती हैं थ्रू वेरियस मीन्स, लाइक सिविल ग्रुप्स, ठीक है, सिविल ग्रुप्स के थ्रू कर रही होती हैं, राइट? कस्टम्स, कस्टम्स के थ्रू, ट्रेडिशंस के थ्रू,
राइट, मीडिया, मीडिया के थ्रू, क्लियर, पीयर ग्रुप है जो आपका, उसके थ्रू, यस और नो। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी के अंदर, ठीक है, सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअली सेक्सुअलिज्म को लेके या होमोसेक्सुअलिटी को लेके एक पॉजिटिव वो नहीं है, व्यू नहीं है, तो आप उसके लिए, आपके लिए भी क्या अंदर डेवलप हो जाएगा वो, राइट, आप भी उसको नेगेटिव साइड ही लोगे, यस और नो। सो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी थ्रू सोशल अप्रूवल्स, राइट, सोसाइटी के अंदर क्या है, थ्रू सोशल अप्रूवल्स कलेक्टिवली डिसाइड करती है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, राइट और रॉन्ग डिसाइड करेंगी। कि फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी का जब मैं एग्जांपल दे रहा था, कि अगर होमोसेक्सुअलिटी को सोसाइटल अप्रूवल नहीं मिला हुआ, ठीक है, तो लोग उसको नहीं बता पाते, सारी उम्र कईयों की बेचारे आगे ही नहीं आ पाते उसको लेके, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप देख रहे हो कि स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स, बिग फैट वेडिंग्स, कि लोग कितना पैसा शादियों में लगाते हैं, सोसाइटी के अंदर उसको ज्यादा अप्रूवल मिलता है, तो आपके लिए वो चीज सही हो जाएगी, आप भी उसी चक्कर में करते हो, राइट, तो वो आपकी वैल्यू सिस्टम के अंदर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है उससे। अगर पॉजिटिव साइड है, मान लो आपके यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर वेस्ट सेग्रीगेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आप पे डेफिनेटली पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, तो आपके लिए, आप अंदर वो वाला वैल्यू सिस्टम आपके अंदर इम्बाइब होगा, यस और नो, तो सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो नाउ लेट्स सी, लेट्स कम बैक टू द स्लाइड, ओके। So now the first question is, first topic is how does society imparts values? Society value impart किस तरीके से करती है? What are the ways the society imparts the values? The first is the religion. So how does religion करता है कि नहीं करता? Yes or no? कि आपके रिलीजन के अंदर लेट्स से कि चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके रिलीजन का, तो आपके लिए यस, उसको सोसाइटल अप्रूवल मिला हुआ है, आपके लिए वो चीज सही है और आप करोगे भी सही, यस और नो। आपके रिलीजन के अंदर इस टाइप के, जिस टाइप के नॉर्म्स होते हैं, वही शेप करते हैं आपके वैल्यू सिस्टम को। रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड कैरीज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर टू बी imbibed by its followers, right? Moreover, religion carries great weight among people, particularly in India, and thus plays key role in value inculcation, not just in India, rather almost everywhere in the world। ठीक है, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Then tradition and customs. Such social practices are sincerely followed by people from generation to generation and are thus steady waves to pass on values. Right? Traditions and customs are also based on various values such as loyalty, courage, etc. And thus their practice inculcates the respective वैल्यूज। रक्षाबंधन मनाते हैं हम, कस्टम से हमारे फेस्टिवल्स जो है, बेसिकली हमें काफी सारी वैल्यूज इंपार्ट करने के लिए, हर एक फेस्टिवल का कोई ना कोई मीनिंग है, कोई ना कोई मैसेज होता है उसके पीछे, तभी उसको सेलिब्रेट करते हैं, और वो वैल्यूज डेफिनेटली हमारे अंदर इनकलकेट भी होती हैं अकॉर्डिंगली, राइट। फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन का यहाँ पे नाम लिया, रक्षाबंधन क्या सिखाता है आपको? लॉयलिटी सिखाता है टुवर्ड्स कि आपको, अब प्रोटेक्शन वाली चीज दिखाता है कि आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, देर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर, लाइक ब्रदर्स का सिस्टर्स के लिए होता है, लाइक जो तिलक करते हैं, तिलक किस लिए? करेज के लिए दिखाता है, यस और नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ अकॉर्डिंगली। ठीक है, काफी सारे कस्टम्स और है, हर पर्टिकुलर रीजन के अंदर कुछ ना कुछ उनके कस्टम्स होते हैं, और वो कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम को आपकी जो है झलका रहे होते हैं, राइट, वैल्यू सिस्टम की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, हर किसी का पर्टिकुलर एक मीनिंग है, राइट, एक प्रॉपर मेथड को इंकलकेट करने के लिए है वो सब कुछ। Then politics. Politics of the day is based on values. That is what people want. Political issues and promises shape the thought process and value of the people, especially young citizens. For example, the anti-emergency student movement of 1975 inculcated among youth the values of
लिबर्टी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, पॉलिटिक्स भी जो आपके अंदर काफी वैल्यू सिस्टम को काफी बड़े तरीके से इम्पैक्ट करता है, काफी कुछ सिखाते हैं आपको कि वहां से आप कुछ अच्छी अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट कर सकते हो। लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का रोल क्या होता है, ठीक है, हाउ मतलब वो आपकी एक लिविंग बीइंग, हाउ टू लिव, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए एक हेल्दी लाइफ कैसे जियोगे आप, उसको इम्प्रूव करने की जो वैल्यू सिस्टम है वो आपके अंदर इम्बाइब करता है। ये सुन लो, आपकी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है द एंटी इमरजेंसी स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ 1975। ठीक है, 1975 की जब इमरजेंसी लगी थी तो वहां पर जो ये मूवमेंट हुई थी, इसके थ्रू जो लिबर्टी, ठीक है, ये वाली वैल्यूज पता लगी आपको, डेमोक्रेसी के बारे में समझ आता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कहाँ पर, नेपाल में हमने देखा था, ठीक है, यूथ ने क्या करा। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? ठीक है, पॉलिटिक्स की वजह से ही। तो इसीलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन वाले दिन तो कहीं पे से छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, उनके लिए तो छुट्टी वाला दिन है, जो कि गलत चीज है। ठीक है, आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझनी बहुत जरूरी है। ओके, देन इकोनॉमी। The nature of economy and market affects the value system of the players involved and decides what is valued by the people. For example, socialist economy inculcates value of unity, equity, temperance, etc. Whereas market economy inculcates value of creativity, competition, prosperity, etc. आपकी इकोनॉमी, नेचर ऑफ इकोनॉमी कैसा आपकी सोसाइटी का, ठीक है, वहां पे किस टाइप की इकोनॉमी फॉलो करी जाती है, उसकी वजह से भी आपके वैल्यू सिस्टम को इफेक्ट पड़ेगा। यस, डेफिनेटली पड़ेगा। लाइक अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लाइक इफ यू लिव इन रशिया, रशिया में आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब ही क्या है, सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, राइट, इक्विटी, सबको बराबरी का हिस्सा मिलता है वहां पर। इक्वालिटी ऑफ व्हाट, आउटकम होता है सोशलिज्म के अंदर, इक्वालिटी ऑफ आउटकम होता है, और कैपिटलिज्म के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, सबको बराबरी का मौका मिलता है, लेकिन सोशलिज्म के अंदर सबको बराबर रखा जाता है। दैट इज द डिफरेंस। सोशलिज्म के अंदर जाओगे तो वहां एक डॉक्टर होगा चाहे एक पीएन, दोनों को बराबर ट्रीट करा जाएगा। बट कैपिटलिज्म के अंदर ऐसा नहीं होगा। कैपिटलिज्म के अंदर दोनों बंदों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भैया आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपको डॉक्टर बन सकते हो डॉक्टर बनो, अगर आप पीएन बन सकते हो तो पीएन बनो। यस, तो अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू सिस्टम भी वैसे ही इम्बाइब होता है, वही इम्पार्ट होता है आपके अंदर। लाइक अगर आप सोशलिस्ट सोसाइटी में जाएंगे तो वहां पे यूनिटी, इक्वालिटी, वननेस, ये वाले फैक्टर्स होंगे। जब आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाएंगे, मार्केट इकोनॉमी में जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, कंपटीशन, राइट, लिबर्टी वाली चीजें बताई जा रही होंगी वहां पर, राइट, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करेंगे वहां पर। सी, क्रिएटिविटी, कंपटीशन, प्रोस्पेरिटी एटसेट्रा इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वेयर इन सोशलिस्ट सोसाइटी इक्विटी, टेम्परेंस एटसेट्रा। अकॉर्डिंगली जैसी जिस टाइप की आपकी वहां की नेचर ऑफ इकोनॉमी होगी सोसाइटी की, अकॉर्डिंगली उस टाइप की वैल्यू सिस्टम आपके अंदर इम्बाइब होंगी। देन इज मीडिया। In the 21st century, media is continuously present around us in various forms, like electronic, print, digital, etc. Yes, so mass media and mass communication affects the values of the people by determining what people think, what people give importance to, and so on. तो मीडिया का एक बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। मीडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यूज। अभी हम क्या देख रहे हैं, द सोर्स बाय विच सोसाइटी इम्पार्ट वैल्यूज, तो मीडिया के थ्रू, राइट। पहले मैंने इकोनॉमी देखा, मीडिया के थ्रू, मास मीडिया, डिजिटल मीडिया हो चाहे आपका, राइट, ठीक है, चाहे आपका प्रिंटेड फॉर्म में मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो गए आपके, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया आपका, इस तरीके से। क्लियर है? देन सिविल सोसाइटी के थ्रू, yes or no? So social and civic organizations mobilize people based on a common cause and promote their cause using media, demonstrations, etc. and thus influence people values. ठीक है, civil society is one of the major tool of imparting values by a society. Yes, civil society जो आपकी बनती हैं वो कलेक्टिव उस थिंकिंग को बता रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके थ्रू आप अपनी वैल्यू सिस्टम को डाल सकते हैं। Yes, this happens through observation and inspiration among the masses. For instance, Jag Lokpal movement in India in 2013 enhanced the values of honesty and integrity among people. ठीक है, I hope समझ आया होगा। Okay, then local community, local community.
Every local community has certain values and norms which are passed on to everyone in the community through the mechanism of social influence. This happens so as to achieve social stability and harmony through common values. For example, the local Dongria Kond tribal community of Odisha valued their sacred Niyamgiri mountain more than jobs and livelihood and hence fought against mining projects. सी जो लोकल कम्युनिटी है आपके सराउंडिंग्स में जो है वहां पर किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर. लाइक आपके जो लोकल कम्युनिटी के अंदर एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं वहां पर. लाइक पेड़ बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं. ठीक है, वहां पर आपकी हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा होता है. वहां पर आपको फास्ट फूड के जो है वो जो ट्रॉली जो लगा के बैठे होते हैं वो अलाउड नहीं होते. लाइक एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है आपको. शोर नहीं मचाना वहां पे, ज्यादा हॉर्न नहीं बजाने वहां पर, ज्यादा रात देर गाने नहीं चलाने अगर वहां पर. तो उस टाइप का वैल्यू सिस्टम आपके अंदर आएगा. यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कौन ट्राइबल कम्युनिटी का उड़ीसा की. ठीक है, उन्होंने क्या सेव किया था, नियमगिरी माउंटेन. ठीक है, हम माइनिंग करने के लिए आए थे तो उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था. ठीक है, अगेंस्ट धरने लगाए थे और अकॉर्डिंगली दे वर एबल टू सेव दैट आल्सो. तो वहां पर वो वाला वैल्यू सिस्टम उसके अकॉर्डिंग इम्बाइब होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं वो. ठीक है, देन लीडरशिप. Social, political, economic and other leaders have significant effect on the values of people. Definitely जो leadership है, जो leaders हैं, जो great leaders हैं, ठीक है, आपके political leaders, social leaders, right, businessmen जो हैं, सबका impact पड़ रहा होता है. राइट, सोसाइटी उसके थ्रू आपके अंदर काफी सारे वैल्यू सिस्टम आते हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ में किस टाइप के वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. आप भी उसको डेफिनेटली आपके लिए एक मार्गदर्शक टाइप होता है वो. राइट, आपके लिए एक पार्ट डिसाइड करते हैं. यू अबाइड बाय दैट, आप ट्राई करते हैं उसको फॉलो करने के लिए. yes or no, सक्सेसफुल पर्सन को स्पेशली. सो दे मोल्ड पीपल्स एटीट्यूड थ्रू परसुएशन. परसुएशन आएगा भी आगे. पीपल ऑल्सो टेंड टू इमिटेट देयर लीडर्स. डेफिनेटली उनको फॉलो करने के लिए ट्राई करते हैं. राइट, वही बताया आपको भी. मैक्स वेबर कॉल सच अथॉरिटी एज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी थ्रू विच लीडर्स कंट्रोल सोसाइटीज. ठीक है, मोदी जी अपने आप को बुलाते हैं ना कैरिस्मेटिक सोसाइटी. कई जगह पढ़ा होगा आपने, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, सॉरी, मोदी जी की बहुत ज्यादा 56 इंच की चौड़ी छाती एंड ऑल दैट, वो इसीलिए किया जा रहा होता है. ठीक है, बट आना नहीं चाहिए बातों में. एनीवेज, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज अफेक्ट पीपल्स वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर ड्रेसिंग, ईटिंग बिहेवियर एक्सेट्रा. ठीक है, सेलिब्रिटीज को पागलों की तरह फॉलो करते हैं लोग. बॉलीवुड हीरोज को फॉलो करेंगे भाई, जो वो कर रहे हैं उनको भगवान बना देते हैं. करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी. डोंट फॉल फॉर इट. ठीक है, कभी कोई हीरो आता है उसके पीछे पागलों की तरह भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, बट येट पीपल डू दैट. ठीक है, दे फॉलो देम. ठीक है, आपको लीडर्स, किस टाइप के लीडर्स को एक्चुअली अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए. अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ना कभी, आपको समझ आएगा व्हाट डज अ रियल लीडर मीन. रियल एक्चुअल बंदे क्या होते हैं. ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़िए. ठीक है, डोंट फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अब टी एन सुब्रमण्यम जी के बारे में पढ़िए. बहुत सारे ऑफिसर्स रहे हैं आपके, आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया हुआ है. उनके बारे में पढ़ना है. बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जिनका नाम भी नहीं सुना होता लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया होता है. ठीक है, वी जस्ट फॉल फॉर दीज बिग स्क्रीन हीरोज. ठीक है, इनके लिए नहीं जाना चाहिए. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज. ठीक है, क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है यहाँ पर. फर्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड हार्मनी. ठीक है, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी. सी सोसाइटी इनकलकेट्स सच वैल्यूज अमंग पीपल व्हिच मैच with those of the society. This ensures that individuals fit in with the society and the social order is sustained. For instance, society teaches young person to respect its old traditions and customs. See, stability and harmony. आपको रहना है सोसाइटी में, पहली चीज तो सोसाइटल अप्रूवल सही रहता है, जरूरी भी होता है कहीं ना कहीं. तो जब आप फैमिली से आपकी जो वैल्यूज हैं वो सोसाइटल अप्रूवल वाली ही हैं, तो आपके अंदर वो वाली वैल्यू सिस्टम इनकलकेट होती हैं, तो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी भी रहती है कहीं ना कहीं. दूसरी चीज कि इस टाइप की जो वैल्यू सिस्टम आपके अंदर इनकलकेट की जाती है सो दैट आप लंबा रहे, सोसाइटी में ही रहना है आपको. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है कि आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप दूसरों के साथ प्यार से बात करते हैं, यू टॉक पोलाइटली विद अदर्स, तो डेफिनेटली ये आपके अंदर वैल्यू सिस्टम आया कहाँ से, सोसाइटी से ही तो आया. सोसाइटल अप्रूवल जो कि फैमिली के थ्रू आपके अंदर आया, तो आप एक स्टेबल और हार्मोनियस लाइफ आपकी रहेगी. यस, ट्रेडिशंस और कस्टम्स सिखाए जा रहे हैं, ट्रेडिशन कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो एक स्टेबिलिटी रहती है.
राइट, वो इसीलिए सिखाई जा रही होती है उसी के थ्रू। देन डाइवर्सिटी, the society is a large set of various actors that have different values to contribute and through different means. Diversity ensures inculcation of variety of values and holistic development of individuals. It also gives choice and freedom to individuals to choose their preferred values. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द स्ट्रेंथ क्या है, देखो सोसाइटी, इंडिया, स्पेशली इंडिया का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। हमारे यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी ठीक है, फिर भी इंडिया सरवाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी, हमारी सोसाइटी इस हिसाब की है। सोसाइटी आपको अलाउ करती है डाइवर्सिटी के लिए। क्या फैमिली के अंदर ऐसा हो रहा होता है? नहीं, फैमिली के अंदर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत फॉर्मल रहती है वहां पर, कि वहां पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। बट सोसाइटी एक ऐसी चीज है कि जहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स टाइप के लोग आपके एग्जिस्ट कर पा रहे होते हैं, डाइवर्सिटी को अलाउ करते हैं वहां पर, राइट। सो यही यहाँ पर लिखा है, देखो, इट इज अ लार्ज सेट ऑफ वेरियस सेक्टर्स दैट हैव डिफरेंट वैल्यूज टू कंट्रीब्यूट एंड थ्रू डिफरेंट मींस diversity ensures inculcation of variety of values and holistic development of individuals. It also gives choice and freedom to individuals to choose their preferred values, right? So we will do one thing. आज का लेक्चर इतना ही था, एक शॉर्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे और वो थोड़ा सा लेंदी भी रहेगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। सो उसी हिसाब से प्रिपेयर करके आना, राइट। एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यस, then do give us a thumbs up, and if you have any doubt you can write it in the comment section. So until our next lecture, I wish you good luck for your future endeavors. So take care and bye bye. Thank you.